یہ خبر تو آپ تک پہنچ ہی چکی ہے کہ وادی تیرہ میں اس بار کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے۔ لوگوں کو نقل مکانی کا بھی کہہ دیا گیا ہے۔ ماضی کی طرح اس بار بھی لوگ رضامند ہو گئے ہیں۔ 2015 سے لے کر اب تک کا ڈیٹا میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ کتنے آپریشن وادی تیرہ میں کیے گئے، کتنی ناکامیاں ریاست کے حصے میں آئیں، کتنی کامیابیاں ریاست کے حصے میں آئیں، اور پھر اس سب سے جو بڑا اور بنیادی سوال ہے کہ متعدد آپریشن کر لینے کے باوجود بھی وادی تیرہ میں امن کیوں نہیں آتا۔ ریاست کی اس غلطی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 23 دسمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیکھیے جو تازہ ترین جو خبر سامنے آ رہی ہے، پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وادی تیرہ کا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ علاقہ ضلع خیبر پختونخوا پاکستان کا جو صوبہ ہے وہاں پر واقع ہے، اور مشکل ترین راستہ ہے، افغانستان کے سرحد کے بالکل پاس لگتا ہے۔ پہاڑیاں ہیں، درے ہیں، جنگلات ہیں، جنگلات سے گھرا ہوا یہ علاقہ ہے، اور یہی اس کا جو جغرافیہ ہے یہ ریاست کے لیے مشکل بناتا ہے اور شدت پسندوں کے لیے اسے آسان بنا دیتا ہے۔ موجودہ سینیریو کے اندر ایک بار پھر ایک بڑے آپریشن کی تیاری کے حوالے سے واضح ریاست پاکستان کی طرف سے اشارہ دے دیا گیا۔ لوگ پہلے نقل مکانی کے اوپر رضامند نہیں ہو رہے تھے، مقامی سطح کے اوپر جرگوں کا انعقاد کیا گیا، لوگوں کو کنونس کیا گیا، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ لوگ رضامند ہو چکے ہیں نقل مکانی پر، اور ایک بڑا آپریشن ریاست پاکستان کی طرف سے یہاں پر کرنے کا ایک اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھنی ہے کہ 2015 سے لے کر اب تک کا جو ڈیٹا ہمارے سامنے ہے وہ ڈیٹا کیا کہتا ہے، کیونکہ تاریخ تو جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ تو تاریخ میں کیا لکھا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ 2015 سے لے کر 2025 تک وادی تیرہ میں متعدد فوجی آپریشنز ہوئے ہیں۔ یہ جو موجودہ آپریشن ہے اسے نکال کر میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ تو ابھی ہونا ہے، تو اس لیے اس کا کوئی ڈیٹا ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ 2015 مارچ 2015 میں فوج نے تیرہ میں ایک بڑا آپریشن کیا، درجنوں دہشت گرد مارے جاتے ہیں اور 16 فوجی جوان شہید ہوتے ہیں۔ فضائی حملے اور زمینی کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں۔ 2016 سے لے کر 2017 تک، اچھا یہ ریاست پاکستان کی طرف سے وادی تیرہ میں ایک پوری سیریز شروع کی گئی تھی آپریشن خیبر کے نام سے، آپریشن خیبر 1، 2، 3، 4، یہ چاروں آپریشن کیے گئے تھے۔ 2016 اور 17 کے اندر آپریشن خیبر 3 اور خیبر 4 اس کا آغاز کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تیرہ کو مستقل طور پر کلیئر کرنا ہے، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا ہے، لیکن مکمل خاتمہ پھر بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ 2018 اور 2020 کے دوران کیا ہوا؟ کوئی بڑا نامی آپریشن نہیں کیا گیا، مگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یہاں پر جاری رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ریاست نے سمجھا کہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن زمین پر حقیقت مختلف تھی، کیونکہ دہشت گرد آہستہ آہستہ دوبارہ اس سرزمین کے اوپر ایکٹیو ہو رہے تھے، لیکن وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت اور تمام جو فیصلہ ساز تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، اب آل از ویل، سارا کچھ سکون میں ہو گیا، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ہوا کیا؟ 2021 سے 2023 کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے سامنے کچھ یوں ہے کہ ٹی ٹی پی دوبارہ اس علاقے کے اندر منظم ہوتی ہے، پھر چھوٹے آپریشنز کیے جاتے ہیں، فضائی کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں، اور سرچ آپریشن بھی کیے جاتے ہیں۔ 2024 میں پورے ملک میں 358 سیکیورٹی اہلکار دہشت گرد حملوں میں شہید ہوتے ہیں، اور جن میں ایک نمایاں حصہ خیبر اور تیرہ بیلٹ سے جڑا ہوا تھا۔ یعنی 358 کا جو سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت کا نمبر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ان میں زیادہ جو شہادتیں رپورٹ ہوئیں وہ اسی بیلٹ کے آس پاس یا انہی علاقوں کے آس پاس یا اسی علاقے کے اندر رپورٹ ہوتی ہیں۔ پھر جنوری میں 22 دہشت گرد مارے جاتے ہیں، 18 زخمی ہوتے ہیں۔ ستمبر میں 30 سے زائد افراد ایک کارروائی میں مارے جاتے ہیں۔ پولیس نے اسے بم فیکٹری پر ریڈ کہا، مقامی لوگوں نے کہا کہ یہ فضائی بمباری کی گئی ہے۔ اکتوبر میں ٹی ٹی پی حملے میں 11 فوجی جوان شہید ہوتے ہیں۔ دسمبر میں نئے آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، اور کل کتنے آپریشن ہوئے، مختصر سمرائز اگر میں کر دوں، 2015 سے لے کر 2025 سے کم از کم 10 سے 15 بڑے اور چھوٹے آپریشنز کیے گئے، یہ وادی تیرہ میں ہو چکے ہیں۔ اصل تعداد اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ چھوٹے موٹے آپریشن بعض اوقات رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو وادی تیرہ کی سرزمین کو استعمال کر کے دہشت گردوں کی طرف سے بڑے اور نمایاں حملے کون سے کیے گئے، ان کی ڈیٹیلز بھی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ تیرہ صرف چھپنے کی جگہ نہیں تھا، یہ ایک لانچ پیڈ بھی رہا ہے دہشت گردوں کی طرف سے۔ یہاں پر تربیت دی گئی، بم فیکٹریاں بنائی گئی، اور حملوں کی منصوبہ بندی بھی وادی تیرہ سے ہی ہوتی رہی، اور ابھی بھی بعض اوقات ایسی رپورٹس آتی ہیں کہ یہیں سے ہوتی رہی۔ 2015 میں فوجی چوکیوں پر نمایاں حملے ہوئے، وہاں پر بھی اسی سرزمین سے ہی یہ تمام چیزیں پلان کی گئیں۔ پشاور اور دیگر شہروں کے اندر جو بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے وہ بھی وادی تیرہ کے اندر ان کی منصوبہ بندی ہوئی، تربیت دی گئی، اور خودکش حملوں کی تیاری کے اندر وادی تیرہ اس علاقے کو ہی استعمال کیا گیا۔ 2016 سے
2017 में क्रॉस बॉर्डर हमले, औरंगज़ई और बाड़ा पर हमले और धमाका खेज़ मवाद की जो फैक्ट्रियाँ थी वो इसी इलाके के अंदर बनी और ये तमाम चीज़ें आपको यहीं से चलती हुई नज़र आएँ। 2024 और 2025 के अंदर टीटीपी ने तीरा को दोबारा बेस बनाया। अक्टूबर 2025 में हाइडर कांडू चौकी पर हमला हुआ, मुनशियात की स्मगलिंग से फंडिंग हासिल की और सितंबर 2025 में बड़ी बम फैक्ट्री को नाकारा बनाया गया। इल्ज़ाम ये था, यानी रियासत ने कहा कि दहशतगर्द इस फैक्ट्री को बम बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मकामी लोगों ने कहा कि यहाँ पर दहशतगर्दों की तरफ से जो वहाँ के मकामी लोग हैं उन्हें एक इंसानी शील्ड के ढाल के तौर के ऊपर भी बनाया हुआ था और इसके अंदर कुछ हलाकतें हुई और मकामी लोगों का भी जिक्र किया जाता है। अब यहाँ पर एक और अहम जो बुनियादी सवाल है, कुछ लोगों के अंदर ये राय मौजूद होती है कि वादी तीरा हो, शुमाली वज़ीरिस्तान हो, इन इलाकों के अंदर अमन इसलिए नहीं आ पाता कि मकामी लोग भी बड़ी तादाद के अंदर फ़ौज से मुनहरिफ हैं और दहशतगर्दों के नज़रिए के साथ हम आहंग हैं। मैं इसको ये नहीं कहता कि ये मुकम्मल तौर के पर ये बयानिया दुरुस्त है, लेकिन आप सारों को भी एक लाइन के अंदर नहीं खड़े कर सकते। मैं कितने ही ऐसे लोगों से ख़ुद भी मिला हूँ जो कि लकी मरवत के रहायशी हैं, जो शुमाली वज़ीरिस्तान के रहायशी हैं, जो वादी तीरा के रहने वाले हैं। कुछ बाज़ ऐसे अफराद हैं जो मेन और मरकज़ी शहरों के अंदर आबाद हो गए हैं क्योंकि उनके इलाक़ों में अमन नहीं आता। तो जब आप उनसे गुफ्तगू करते हैं, आप उनका दर्द सुनते हैं, आप उनकी रुदात सुनते हैं, तो आपको हक़ाइक़ इसके अलावा नज़र आते हैं। वो रियासत के साथ बड़े बावफ़ा और मुखलिस होकर आपको खड़े हुए नज़र आते हैं और कुछ अनासर का वो गिला शिकवा भी करते हैं कि हम में से कुछ ऐसे अफराद हैं जो फ़ौज से ज़्यादा उनके साथ मोहब्बत रखते हैं, उन्हें खाना भी प्रोवाइड करते हैं, उनको भत्ता भी देते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि एक तो वो लोग हैं जो किसी हद तक उनके नज़रिए के साथ हम आहंग हैं और कुछ वो लोग हैं जो खौफ की वजह से करते हैं कि अगर हमने इनका साथ ताउन न किया, इनको खाना प्रोवाइड ना किया, इनको छुपने के लिए जगह ना दी, इनको पैसे ना दिए तो ये हमें मार देंगे। तो कुछ की मजबूरियां हैं। ये इस वजह से भी कहा जाता है कि मकामी लोग भी किसी हद तक आपको सहूलतकारी करते हुए नज़र आते हैं। तो उसके दो महरक़ात हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अच्छा, इसके अंदर 2014 से 2015 में बड़ी तादाद के अंदर लोग नकल मकानी पर भी मजबूर हुए, लोग बरसों दरबदर रहे। 2025 सितंबर में 30 जो शहरी हैं वो भी इस लड़ाई के अंदर शहीद हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 900 से ज़ायद ख़ानदान एक बार फिर नकल मकानी पर मजबूर हैं। हुकूमत ने मुआवजे का ऐलान किया, 2.5 लाख फौरी, 50,000 माहाना। और अगर 2015 से ऑनवर्ड का डाटा निकाला जाए तो बताया जाता है कि 85,000 या इससे भी ज़ायद अफराद जो हैं वो नकल मकानी पर मजबूर हुए। ये दर्द मैं और आप इसलिए नहीं समझ सकते कि हम ज़ाहिर उन इलाकों में नहीं रहते, और ये दर्द इसलिए भी इतना अज़ियतनाक होता है कि किसे ये शौक़ होता है और किसके लिए इतना आसान होता है कि अपनी सरज़मीन, अपने अमलाक, अपने आबा व अजदाद की जगह को हर दूसरे तीसरे महीने के बाद या 1 साल के बाद छोड़ना पड़े, इसलिए कि यहाँ पर फिर ऑपरेशन होना है, फिर ऑपरेशन होना है। तो जो कोलैटरल डैमेज होता है, लोगों के घरों को नुकसान पहुँचता है, उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचता है, उससे लोग जो हैं वो फिर बदज़न भी होते हैं। और जब उनका फिर मदावा भी ना हो और गवर्नेंस और सूबाई हुकूमतें उसका मदावा भी ना करें तो फिर उनके दिलों के अंदर एक नफ़रत उभरती है और ऑपरेशन से मुतल्लिक़ एक मनफी प्रोपेगेंडा भी हमें उसी सूरत में सामने भी आता है। और फिर इसके अंदर एक और जो चीज़ है, जो सबसे बड़ा और एक मेन जो बुनियादी पॉइंट है जिसका ज़िक्र मैंने इब्तदा के अंदर भी किया कि आखिर क्यों इतने मुतादिद ऑपरेशन हो जाने के बावजूद भी, अगर हम 10 से 15 चलिए, हम 15 का ही नंबर ले लें, तो अब एक 16वें ऑपरेशन का जिक्र किया जा रहा है ना कि एक बार 16वां ऑपरेशन होगा तो इसका अंजाम क्या होगा। क्या नया ऑपरेशन होगा तो अंजाम पुराना होगा? यानी इतने ऑपरेशन कर लेने के बावजूद भी आपको कामयाबी नहीं मिली, या कामयाबी क्यों नहीं मिलती है? उसकी वजह है, आपको सोवियत यूनियन के ज़माने में जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा रही थी इस खत्ते में, अफ़गानिस्तान के अंदर, उस वक्त वादी तीरा का बड़ा एक कलीदी किरदार था। वो किरदार क्या था वो मैं आपको बताता हूँ कि 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत अफ़गान जंग में वादी तीरा में एक खामोश मगर अहम किरदार था इस जगह का। यहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जाता था, उनकी सप्लाई चेन यहाँ पर थी, असलहे की तरसील यहाँ से होती थी, दुश्वार गुजार रास्ते थे, और यही रास्ते दुश्वार गुजार रास्ते जो थे यहाँ पर सोवियत यूनियन को मालूम ही नहीं हो पड़ता था कि यहाँ से ये कहाँ से लोग आते हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर कैसे दाखिल हो जाते हैं और कैसी कार्रवाइयाँ करके निकल जाते हैं। तो इन मुश्किल रास्तों को बताया गया, इनको सिखाया गया, इनकी ट्रेनिंग वहाँ पर की गई, और यही बाद में जो रास्ते हैं अब दहशतगर्द पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक बुनियादी और वजह है कि वादी तीरा के अंदर जो इसके इतने माजी से लेकर जो बीज एक बोया गया, यहाँ पर एक पूरी सप्लाई चेन खड़ी की गई, यहाँ पर लोगों को ट्रेन किया गया, और अब ऐसी ये जो सरजमीन है
उन लोगों के लिए आशना और हो चुकी है कि उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं अपने मज़मूम मकासद के लिए, और इसी सरज़मीन से वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहत्ते लोगों के अगेंस्ट और सिक्योरिटी एहलकारों के अगेंस्ट आपको कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आते हैं। तो गलतियाँ हमारी भी हैं कि हम एक ऐसी जंगों के अंदर गए और हमने वहाँ पर ऐसे लोगों को फिर ट्रेन किया, और जब आप ट्रेन करते हैं तो फिर उसके जो रिज़ल्ट निकलते हैं वो फिर आप आज तक भुगत रहे हैं। गो कि रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसके ऊपर एक अलहदा भी है कि अगर हम सोवियत यूनियन को इस सरज़मीन से ना निकालते तो ये कल को तोसी पसंदी वाले नज़रिए के तहत पाकिस्तान के ऊपर भी हमला आवर हो सकता था। ये एक नज़रिया है, इसके ऊपर भी हमने तफसील से एक वीडियो बनाई। लेकिन कुछ भी मजबूरियाँ हों, जो भी वजूहात हों, जो भी एक मंसूबा हो, उसके तहत आपने जो कुछ भी किया वो फिर आपके लिए भी दर्द-ए-सर बन गया है। और यही एक बुनियादी वजह भी सामने आती है कि मुतादिद ऑपरेशन कर लेने के बावजूद भी यहाँ पर अगर कामयाबी नहीं मिल रही है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो अनासर हैं, शिद्दत पसंद हैं, वो इस इलाके से मुतल्लिक एक एक चीज़ों से मुतल्लिक भी वो आगाह हो चुके हैं, और गवर्नेंस की कमज़ोरी की वजह का मुकम्मल फ़ायदा जो है वो उठाते हुए आपको ये दहशतगर्द नज़र आते हैं। ये तमाम तर वो मुहर्रिकात हैं, वजूहात हैं, और वादी तीरा के लोग जिस मुसीबत और जिस अज़ियत से गुज़रते हैं, हर साल 2 साल 3 साल के बाद उन्हें एक नए ऑपरेशन की खबर सुना दी जाती है और फिर वो दरबदर हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं। फिर इसके लिए एक मैकेनिज़्म रियासत को बनाना पड़ेगा, और अब की बार ऑपरेशन अगर हो रहा है तो फिर इस चीज़ को एश्योर करना चाहिए कि ये अब की बार एक ऐसा आखिरी ऑपरेशन होना चाहिए कि वादी तीरा हमेशा हमेशा के लिए पुरअमन इलाका कहलाए, और यहाँ के जो लोग हैं, बासी हैं, वो यहाँ पर पुरसुकून होकर ज़िंदगी गुजार सकें, और तमाम तर वसाइल जो मेन शहरों वाले से महजूज़ होते हैं वो उनको तालीम दी जाए, उनके हॉस्पिटल उनके इलाकों के अंदर बनाए जाएँ। ये तमाम तर जो वसाइल हैं, फैसिलिटीज़ हैं, ये उन्हें उनकी घर की दहलीज़ पर ही मिलना चाहिए। तो ये तमाम तर की वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।